So good afternoon, everyone. Today we'll be starting with the endocrine system. We've already started, and today we are supposed to do with the hormones which are released by liver, kidney, and heart. We've already done, right? So initially, we'll start with liver. Okay. So what is the another name of liver? It is also known as hepa. So initially, let us understand the structure or the anatomy of liver. When we talk about the anatomy of liver, so liver के हम दो व्यूज हम देखेंगे, दो व्यू देखेंगे. One will be the anterior view, the another would be the posterior view. So when we look to the anterior view मतलब आपका वेंट्रल सरफेस की साइड से, जब आप लिवर को देखोगे फ्रंट सेक्शन से, सामने से देख रहे हो, मेरी वेंट्रल सरफेस पे जो लिवर है, तो दैट वुड बी दी एंटीरियर व्यू. और जो उसका डॉर्सल सरफेस बैक साइड से पीछे से अगर लिवर को देखोगे, ठीक है, तो वो उसका पोस्टीरियर व्यू कहलाएगा. तो एंटीरियर व्यू अगर हम लिवर का बनाए तो देखो कैसे बनेगा. This is the liver. Liver, from the anterior view, if we look up to the liver, it is divided into two lobes. The bigger lobe forms the 5/6 part of the liver, whereas the remaining forms only the 1/6 part. This 5/6 part is known as the right lobe of the liver. The right lobe of the liver. Or right hepatic lobe. Simple. Right hepatic. This is known as left hepatic. These two lobes are joined together by a ligament, and this ligament is known as falciform ligament. उसके बाद यहां से कुछ डक्ट्स अराइज करते. अगर हम बात करेंगे राइट हेपेटिक लोब से, तो यहां से कुछ डक्ट्स अराइज करेंगे. देयर आर सम डक्ट्स व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम हियर, बट कुछ डक्ट्स हैं जो आपकी लेफ्ट हेपेटिक लोब से भी अराइज करेंगे. ठीक है, तो दीज आर योर लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स. These are your right hepatic ducts. ये दोनों डक्ट्स मिलके यहां आपका गॉल ब्लैडर में एंटर करते हैं, और ये दिस इज योर गॉल ब्लैडर. This is your gallbladder, and the duct which arises from gallbladder is known as cystic duct. It is known as cystic duct. अब ये cystic duct और आपकी ये hepatic duct, this is your common hepatic duct. अब जब ये cystic duct और आपकी hepatic duct दोनों आपस में मिल जाती हैं, when all these two combine together, they form a common duct. तो जो ये आपकी cystic duct है, जब इस hepatic duct से मिल जाती है, so this is your common hepatic duct. So when this common hepatic duct combines with the cystic duct coming from gallbladder, then these two combine together, they form a common bile duct. They form a common bile duct, and common bile duct is known as ductus choledochus. Ductus choledochus. So common bile duct is known as ductus choledochus. ये anatomy clear हो रही है? Anterior view liver का clear हो रहा है? Now what happens here? सर प्लीज बोलो. एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा पूरा लेबल करके. ओके ठीक है.
एक बार यहाँ तक कर लेते दोबारा से। दिस इज लेफ्ट हेपाटिक लोब, दिस इज राइट हेपाटिक लोब। लिवर का एंटीरियर व्यू देख रहा हूँ, मतलब जब आप मुझे सामने से देख रहे हो तो इस टाइम अगर यहाँ मेरा कोई इंसेशन लगाओगे, इस टाइम जो मुझे तुम्हें लिवर का व्यू दिखेगा वो एंटीरियर व्यू दिखेगा। जब तुम अपनी बॉडी के वेंट्रल सरफेस से कोई इंसेशन लगाओगे और लिवर के व्यू को देखोगे, सो यू विल फाइंड द एंटीरियर व्यू ऑफ द लिवर। सो एंटीरियर व्यू में आपको लिवर के अंदर दो लोब दिखते हैं। So दो lobes में होता है right lobe and left lobe. These two lobes are joined together by a ligament known as falciform ligament. The right hepatic lobe is bigger one, whereas the left hepatic lobe is the smaller one. यहाँ तक क्लियर हो रहा है? Yes. यहाँ तक क्लियर हो? Okay. जो हमारा राइट हेपाटिक लोब है, राइट हेपाटिक लोब वो कितना पोर्शन बनाता है लिवर का? कितना पोर्शन बनाता है लिवर का? 5-6 पार्ट। और जो रिमेनिंग है वो कितना पार्ट बनाता है? 1/6 hepatic lobe. Guys, am I audible? Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Can you see the screen? One second, just give me a minute. Actually, net just got disconnected. Just a minute. Okay. क्या आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? No, sir. No, sir. There's some, one second. I'll have to make this. Now is the screen visible? Now is the screen visible, beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, दिस इज लेफ्ट हेपाटिक लोब, दिस इज राइट हेपाटिक लोब। राइट हेपाटिक लोब लार्ज पार्ट बनाता है, लेफ्ट हेपाटिक लोब छोटा पार्ट बनाता है, ठीक है। जो राइट हेपाटिक लोब है उससे कुछ डक्ट्स राइज होती हैं जिसका नाम है राइट हेपाटिक डक्ट। लेफ्ट लोब से दूसरी डक्ट्स निकलते हैं जिनका नाम है लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। दोनों ज्वाइन करके यहाँ से एक सिक्रीशन गॉल ब्लैडर में भेजती है। फिर गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट इस कॉमन हेपाटिक डक्ट से कंबाइन करती है और कॉमन हेपाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं जिसका नाम है डक्टस पॉलीडोकस। इतना क्लियर हुआ? उमामा, Yes, तुम्हारा sir. डाउट था ये? इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. अब ध्यान से देखना, यहाँ हमारे पास लिवर है which is a leaf shaped like structure। This is the first part. This is the first part of small intestine, which is known as duodenum. This is pancreas. ठीक है, pancreas के चार पार्ट होते हैं। This is the head. This is neck. This is the body. This is the tail. So this is pancreas. This is pancreas. अब पेनक्रियास के अंदर
दो डक्ट्स होती है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक सेंटर वाली डक्ट है और कुछ डक्ट्स निकल रही है जो साइड में से ऐसा राइज कर रही है। अब जो ये साइड में जो डक्ट्स राइज कर रही हैं, these are known as accessory pancreatic ducts. एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट्स, यहां मैं आपको एनाटॉमी ऑफ पेंक्रियाज भी बता रहा हूं, ठीक है, साथ ही साथ। एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट, एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट्स आर आल्सो नोन एज डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट्स ऑफ, दे आर आल्सो नोन एज डक्ट्स ऑफ सेंटोरिनी। ये सारी डक्ट्स कंबाइन करके बीच में ये जो बड़ी वाली डक्ट है जिसको मैं शेड करने जा रहा हूं, कैन यू सी दिस डक्ट जिसको मैं शेड कर रहा हूं? Yes, sir. जिसको ये मैंने शेड किया है, इस डक्ट को हम बोलते हैं मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। दिस इज नोन एज मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, एंड दिस मेन पेंक्रियाटिक डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ वर्सम। अब ध्यान से समझना, अब बहुत ध्यान से समझना। अब ये जो ऊपर से डक्टस कॉलिडोकस आई थी, कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट एंटर करेगी और ओपन होगी इस मेन पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, ओपन होगी, और यहां एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, यहां एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। जब ये ओपन करेगी तो यहां एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, और इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। आपकी डक्टस कॉलिडोकस जो मेन कॉमन बाइल डक्ट थी, वो कॉमन बाइल डक्ट किसके अंदर ओपन हुई? मेन पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, डक्ट ऑफ वर्सन के अंदर। जब वो डक्ट ऑफ वर्सन के अंदर ओपन हुई, अब ये डक्ट ऑफ वर्सन नहीं कहलाएगी, अब ये जो आगे बन जाएगी, जिसको मैं जिगजैग से दिखा रहा हूं, ये जो जिगजैग से मैं दिखा रहा हूं, ये अब मेन पेंक्रियाटिक डक्ट नहीं कहलाएगी, अब इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। दिस हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट का आगे बढ़ती है और यह एक सोलन पार्ट, एक उभरा हुआ पार्ट होता है, सोलन पार्ट होता है, और फिर ये ड्यूडेनम में जाके ओपन हो जाती है थ्रू अ स्फिंक्टर, थ्रू अ स्फिंक्टर। तो ये जो उभरा वाला पार्ट है, इस उभरे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हेपाटोपेंक्रियाटिक एम्पुला, हेपाटोपेंक्रियाटिक ampulla, which is also known as ampulla of Vater, ampulla of Vater, V-A-T-E-R, ampulla of Vater। एंड ये जो स्फिंक्टर है जो ड्यूडेनम में आके खुलता है, इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या हेपाटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर। सो दिस स्फिंक्टर इज नोन एज, इसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो स्फिंक्टर है ना, जिसको मैंने ए करके दिखाया, उसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज नोन एज hepato-pancreatic sphincter, or it is also known as sphincter of Oddi या OD, ठीक है, sphincter of Oddi। एक बार दोबारा से रिवाइज करें। Yes, sir. अब ध्यान से समझना, ठीक है, अब मेरे साथ रहना क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये लिवर है, लिवर का एंटीरियर व्यू मैंने बनाया और साथ में मैं पैंक्रियास की एनाटॉमी भी आपको बता रहा हूं, ठीक है, ओके। तो लिवर के अंदर जब हम बात करेंगे तो लिवर का एंटीरियर व्यू देखूंगा तो कौन सा लोब दिखेंगे? दो लोब्स दिखेंगे, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब विल फॉर्म द 5/6 पार्ट
whereas the left lobe will form the 1/6 part. राइट हेपाटिक डक्ट निकलेगी राइट लोब से, लेफ्ट हेपाटिक डक्ट निकलेगी लेफ्ट लोब से. ये आपका इंटर करते हैं सिस्टिक डक्ट में, और सिस्टिक डक्ट से जो भी सेक्रीशन होगा वो गॉल ब्लैडर में जाएगा. सॉरी, हेपाटिक डक्ट से जो भी सेक्रीशन होगा वो गॉल ब्लैडर में जाएगा, और गॉल ब्लैडर से फिर एक डक्ट निकलेगी जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट. अब ये सिस्टिक डक्ट इस हेपाटिक डक्ट के साथ कंबाइन करेगी, और ये दोनों कंबाइन करके कौन सी डक्ट बनाएंगी? कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलिडोकस. अब ये कॉमन बाइल डक्ट आपकी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट से जॉइन होती है. तो जब यहाँ ये जॉइन होगी तो यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा. स्फिंक्टर का नाम क्या है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन. अब पेंक्रियास के अंदर 4 पार्ट होते हैं, उसके 4 पोर्शंस हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल. पेंक्रियास के अंदर मेनली 2 डक्ट्स होती हैं. साइड में जो आपकी एक्सेसरी डक्ट्स है, इनका नाम है एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट्स या डक्ट्स ऑफ इंसेंटोरिनी. ये सारी डक्ट्स कंबाइन करके बड़ी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट बनाती है जिसका नाम है डक्ट ऑफ बर्सन. ठीक है, दिस डक्ट ऑफ बर्सन, ये डक्ट ऑफ बर्सन में जैसी आपकी कॉमन बाइल डक्ट एंटर करती है, जैसे कॉमन बाइल डक्ट एंटर करेगी इस डक्ट ऑफ बर्सन में, और कौन सी स्फिंक्टर से ओपन होगी? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन. उसके बाद अभी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट का जो नाम है, जो ये डक्ट ऑफ बर्सन है, अभी डक्ट ऑफ बर्सन नहीं कहलाएगी. नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट. अब ये हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट बन गई. दिस हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट, उसके बाद वो स्ट्रेट जाती है, उसके बाद वो एक स्वोलन पार्ट बना लेती है, एक उभरा हुआ पार्ट बना लेती है जिसका डायमीटर ज्यादा होता है. उसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर या हेपाटोपेंक्रियाटिक एम्पुला, which opens into the duodenum of the small intestine through another sphincter known as hepatopancreatic sphincter or sphincter of OD. इतना समझ में आया तो बताओ. Yes, sir. Yes, sir. किसी भी एक भी बच्चे को यहाँ तक डाउट है तो पूछो. पूछिए. किसी एक भी बच्चे को यहाँ तक डाउट है तो पूछो. इफ यस तो हम आगे, अभी नहीं, मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा, पर अभी पहले पूछो कोई डाउट है तो. यहाँ तक क्लियर है सबको? सर Yes, एक sir. मिनट साइड हो जाइए. हाँ. अब इसका पोस्टीरियर व्यू डिस्कस करें. कैन वी डिस्कस द पोस्टीरियर व्यू नाउ? Yes, sir. अब इसका पोस्टीरियर व्यू देखो. मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, कहाँ इंफीरियर वेना केवा आ रही है, कहाँ हेपाटिक आर्टरी आ रही है, कहाँ हेपाटिक आपका पोर्टल वेन आएगा, वो सब कुछ नहीं बना रहा हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक एनाटॉमी राइट नाउ. ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना. जब हम इसका पोस्टीरियर व्यू बनाएंगे, जब हमें पीछे से कैसा दिखेगा. So this is the left lobe. This is the right lobe. तो जब हम इसको पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे ना, तो हमें 4 लोब्स दिखेंगे. लेफ्ट लोब, राइट लोब, दिस इज द कॉर्डेट लोब. ये हमें एंटीरियर व्यू में नहीं दिखता. कॉर्डेट लोब एंड दिस इज द क्वाड्रेट लोब. तो जब कभी भी हम लिवर की एनाटॉमी की हम बात करेंगे, जब भी हम कभी लिवर की एनाटॉमी की बात करेंगे, एक चीज हमको बहुत ध्यान रखनी है, एक चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो क्या इंपॉर्टेंट है? वो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बताना है कि लिवर में कितने लोब्स होते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ द व्यू दैट वी आर वर्किंग ऑन. अगर एंटीरियर व्यू की बात कर रहे हैं तो राइट लोब, लेफ्ट लोब दिख रहा है. तो पोस्टीरियर व्यू की बात कर रहे हैं तो हमें 4 लोब दिख रहे हैं. लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब, क्वाड्रेट लोब, राइट लोब. आपको क्लियर है बिल्कुल?
अब इसमें हमें बताना है इंफीरियर वेना केवा की पोजीशन किधर है, ठीक है, और आपका क्वाड्रेट लोब उसमें गॉल ब्लैडर की पोजीशन किधर है। तो अब जो मैं बना रहा हूं, दिस इज द गॉल ब्लैडर, जिसको मैंने शेड किया, ये गॉल ब्लैडर है। और इंफीरियर वेना केवा जो यहां से ब्लड लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड, wait, this is the inferior vena cava, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाई है थोड़ा, यस, ये दिस इज द इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा, जो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। तो जब हम पोस्टीरियर व्यू की बात करेंगे लिवर की, सो वी विल सी द 4 लोब्स, और जब एंटीरियर व्यू की बात करेंगे तब हमें कितने लोब्स दिखेंगे, 2 लोब। इतना क्लियर है आप लोग को? यस सर। Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन से हार्मोन निकालता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये रफ कर दूं मैं सारा? Yes, sir. सर पोस्टीरियर रहने दीजिए अभी। ओके, ठीक है, ये रहा पोस्टीरियर। सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। अब देखिए, नो सर। देखो मैं बोल देता हूं, लेफ्ट लोब है, कॉर्डेट लोब है, राइट लोब है, क्वाड्रेट लोब है। ये पार्ट जिसको मैं शेड कर रहा हूं, गॉल ब्लैडर, दिस इज इंफीरियर वेना केवा। ओके सर, हो गया। ओके, अब देखिए, अब जब हम लिवर की बात करेंगे, सो लिवर इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, इंपॉर्टेंट ऑर्गन which plays a significant role or vital role in digestive system. ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो लिवर है इट रिलीजेस बाइल जूस, आई शुड से इट सिंथेसाइजेस बाइल जूस। क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस कौन बनाता है, तो कौन बनाता है बाइल जूस हमारा? लिवर। गॉल ब्लैडर नहीं बनाता, ये ध्यान रखना, गॉल ब्लैडर डज नॉट मेक बाइल जूस, सो बाइल जूस इज मेड बाय लिवर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय व्हाट? लिवर, पहली बात। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है बाइल जूस ये एक ऐसा जूस है हमारी बॉडी में which does not have any enzyme, which does not have any digestive enzyme, which does not have any digestive enzyme, ये कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रखता। फिर भी हम कहते हैं कि बाइल जूस causes emulsification of fat, still we say it causes emulsification of fat, ये फिर भी फैट को emulsify मतलब बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे से फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है।
ये तो एमल्सिफिकेशन होता है, हम ये तो बोलते हैं कि ये बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, पर जिसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं है तो फिर ये काम कैसे कराता है? तो तुम्हें पता है कि लिपिड के डाइजेशन के लिए हमें कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? लाइपेज। लिपिड को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट है? लाइपेज। तो इसमें तो लाइपेज होता ही नहीं है, तो फिर ये कैसे तोड़ रहा है? तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है। ये जो बाइल जूस है ना, ये बाइल जूस क्या काम कर रहा था, ध्यान से देखना। पेनक्रियासिक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज, पर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, दिस इज इनएक्टिव। बाइल जूस का काम है कि वो इस पेनक्रियाटिक जूस को एक्टिव करने में हेल्प करता है। तो बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस कॉजेस द एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज, ताकि पेनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड पे एक्ट करे और उसको फाइनली किसमें तोड़ दे? किसमें तोड़ेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फाइनली फैटी, आपका जो फैट है वो उसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। याद करो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था मैंने, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा था? Yes, ट्राइग्लिसराइड। sir. और फाइनली जो आपका ट्राइग्लिसराइड था वो ट्राइग्लिसराइड किसमें टूट रहा था आपका? फैटी एसिड्स प्लस Glycerol. तो इस पे तुम्हारा ऐड करेगा पेनक्रियाटिक लाइपेज, बट पेनक्रियाटिक लाइपेज रिएक्शन कभी नहीं करा पाता अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता, पर इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर रहा है? Bile juice. Bile बाइल juice. जूस। दैट मींस अगर बाइल जूस नहीं होगा तो क्या लिपिड का डाइजेशन हो पाएगा? No, sir. No, sir. तो बाइल जूस कैरीज आउट इनडायरेक्ट डाइजेशन ऑफ फैट। तो जो फाइनली जो डाइजेशन होता है फैट का, वो बाइल जूस डायरेक्टली इसमें रोल प्ले नहीं करता। वो क्या करता है? एमल्सिफाई करता है उसको बड़े मॉलिक्यूल्स में छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। और सेकेंडली व्हाट द रोल इट प्लेज हियर इज that it converts the inactive pancreatic lipase into active form so that the digestion of triglyceride can take place and triglyceride can be finally broken into the fatty acids as well as glycerol. ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. इतने में किसको कोई डाउट है तो पूछो पहले। इतने में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे। बाइल जूस एक काम और करता है। बाइल जूस also carries out the absorption of vitamin K. It also helps in the absorption of vitamin K. It helps in the absorption of vitamin K. Vitamin K के absorption में हेल्प करता है। तो बाइल जूस also helps in the absorption of vitamin K. तो हमारी पूरी जो इंटेस्टाइन है उसमें जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब हमारे विटामिन के की एब्जॉर्प्शन का रेट कौन बढ़ाएगा? बाइल जूस। इतना क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. अब एक काम और है, देखिए इतना लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये क्या करता है? It releases a hormone known as somatomedins. Somatomedins. These are insulin-like growth factors. These are insulin-like factors. Insulin-like hormone. Or it is a insulin-like factor. अब ये क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा? ये आपका हेल्प करेगा ग्रोथ हार्मोन को और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाएगा। तो जो सोमैटोमेडिन्स हैं, दीज आर इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन ऑफ फैक्टर्स जो मेडिएट करते हैं ग्रोथ हार्मोन के एक्शन को, मतलब ग्रोथ हार्मोन के एक्शन को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म का रेट भी बढ़ सके, आपकी बॉडी में ग्रोथ हो सके। तो सोमैटोमेडिन्स क्या करेंगे, लिख लीजिए। They mediate the action of the growth hormone. They mediate the action of growth hormone.
मतलब ग्रोथ हार्मोन के साथ उसके इफेक्ट को बढ़ाएगा मिलकर सोमैटोमेटिन। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी की क्या किस में हेल्प करता है? व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन बेटा? मामा, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ कराता है। एग्जैक्टली जितने भी हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, ठीक है, स्पेशली जो मेनली इसका काम है वो क्या करता है, जितने भी हमारी बॉडी की ग्रोथ है, जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको ग्रो अगर कराना है तो ग्रोथ हार्मोन इज हाईली इनिशियल एसेंशियल। सो ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी को, एक्शन को मेडिएट कराने के लिए सोमैटोमेटिन्स आर रिलीज बाय लिवर। दूसरी चीज ये क्या रिलीज करता है दूसरी चीज ये रिलीज करता है आपका एक हार्मोन जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। अब तुम कहोगे सर एरिथ्रोपोइटिन तो किडनी रिलीज करती है, किडनी भी रिलीज करती है। इट इज अ हार्मोन which carries out a process known as erythropoiesis. Erythropoietin is a protein which carries out a process known as erythropoiesis. Erythropoiesis का मतलब होता है formation of blood cells, formation of RBCs, formation of erythrocytes. तो ये हार्मोन है, erythropoietin is a hormone जो एरिथ्रोपोइसिस कराता है, कैरीज आउट एरिथ्रोपोइसिस। और लिवर, जितना भी हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन बनता है, लिवर हमारा कितना बनाता है उसका 15%। तो रिमेनिंग 85% कौन बनाएगा? किडनी। तो किडनी भी बनाती है एरिथ्रोपोइटिन, किडनी आल्सो फॉर्म्स एरिथ्रोपोइटिन, बट उससे कितना बनेगा? 85%। और रिमेनिंग 15% कौन बनाएगा? लिवर। So liver also forms erythropoietin, that is the 15%, whereas kidney forms only 85% of the erythropoietin. So kidney forms the major section, that is the 85%, whereas liver only forms the 15% of erythropoietin, which is a hormone which carries out a process known as erythropoiesis. Erythropoiesis का मतलब क्या है? RBC का बनना, blood का बनना. Is that understood? Yes, sir. Okay. एक चीज और है, इतना सबने लिख लिया? इतना लिख लिया? Yes, sir. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ध्यान से देखो। मैंने उस दिन बताया था कि जब हमारी बॉडी में हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर? लो ब्लड प्रेशर। अगर हमारी बॉडी में लो ब्लड प्रेशर है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो किडनी में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा है वो कम होगा या ज्यादा? हार्ट से मेरा ब्लड ही होगा, पंप हो रहा है, तो जो किडनी तक ब्लड जाना चाहिए, टोटल किडनी में जो ब्लड जाता है वो 20% जाता है, जो हमारा हार्ट एक बार पंप करता है, तो उसका 20% जाता है। तो अब जब ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम कम है, तो द अमाउंट ऑफ ब्लड एंटरिंग इनटू द किडनी विल बी लेस और मोर? Less. लेस। तो उसको हम बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो, वो भी कम हो जाएगा। जब रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, हम इसका ब्लड का लिक्विड पार्ट ले रहे हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम होगा। अब ध्यान से देखो, दिस इज Bowman's कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के कॉमन टर्म बोलते हैं जिसका नाम है रीनल कॉर्पस्कल और मालफिजियन कॉर्पस्कल। दिस इज द कॉमन टर्म फॉर बोथ दीज टर्म्स, ठीक है, कंबाइन करके कॉमन टर्म बोलते हैं। अब ये रीनल प्लाज्मा फ्लो मतलब ये ब्लड आ रहा है हमारे यहाँ, अब ये फिल्टर होके आपका Bowman's कैप्सूल में एंटर करेगा। तो ये जो प्लाज्मा है ये फिल्टर होगा बाय द प्रोसेस नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से
आपका ये जो ब्लड है ये छन के वोमेन्स कैप्सूल में जाएगा। जिस रेट पे आपका ये ग्लोमेरुलस इस ब्लड को फिल्टर कर रहा है उसको हम बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR क्या होता है? It is the rate at which this glomerulus is filtering the blood. किस रेट पे ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, वो किस रेट पे पर यूनिट टाइम मतलब वो इस ब्लड को फिल्टर कर रहा है, दैट इज योर GFR। तो बेटा जब रीनल प्लाज्मा फ्लो कम है तो GFR ज्यादा होगा या कम होगा? कम ऑब्वियसली होगा। जब ब्लड ही कम आ रहा है तो GFR भी कम होगा। तो इसका मतलब GFR will also get reduced। जब GFR कम हो जाएगा तो यहाँ फिल्ट्रेट भी कम आएगा, नीचे छन के। जब फिल्ट्रेट ही कम आएगा तो अब यूरिन कम बनेगा या ज्यादा? कम बनेगा। बिल्कुल, तो यूरिन भी कम ही बनेगा। तो अब क्या होता है इस कंडीशन में? क्या होगा जब लो ब्लड प्रेशर होगा? इतना आप लोगों ने बना लिया? यस सर। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, आप जनरली एफरेंट आर्टेरियोल यहां से बनाते हो, बस मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं। अब मैं एफरेंट आर्टेरियोल को यहां से बनाऊंगा। आपको पता है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये आपका ब्लड लेके आएगा फ्रॉम द रीनल आर्टरी, और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। अब ध्यान से देखो, एफरेंट आर्टेरियोल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल की मेम्ब्रेन है ये स्मूथ मसल की बनी है। तो वॉल ऑफ efferent arteriole, efferent arteriole is modified to form special type of cells. Volkison cells. Very good. अच्छा, हमने डिस्कस किया था ना ये? Yes sir. यस सर। यस सर। Volkison cells, कोई बात नहीं है, रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Volkison cells, और ये जो हमारी वॉल होती है ये कौन सी मसल्स की बनी होती है? स्मूथ या नॉन स्मूथ मसल्स? Smooth. स्मूथ muscle. तो यहाँ हमारे कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं पोल्केसन सेल्स। ठीक है, these are पोल्केसन सेल्स। अब ये क्या होता है हमारा? दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज Bowman's capsule, this is proximal convoluted tubule, this is thick segment of descending loop of Henle,
This is thin segment of descending loop of Henle. This is thick segment of ascending loop of Henle. This is thin segment of ascending loop of Henle. This is DCT, distal convoluted tubule. This is connecting tubule or junctional tubule. Connecting or junction tubule. This is connecting tubule. This is connecting duct. ठीक है, अब जो DCT के सेल्स हैं, जो इसकी लेयर है, यहाँ भी हमारे स्पेशली मॉडिफाइड टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मैकुला डेंसा। इनको हम क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा सेल्स। मैकुला डेंसा सेल्स और आपके पोल्केसिन सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो मैं बना रहा हूं, इन सेल्स को हम बोलते हैं लेसिस सेल्स। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? लेसिस सेल्स। अब ये जो तीनों सेल्स हैं आपके, ये तीनों, ये और आपका ये, ठीक है, ये सेल्स और आपका ये सेल, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब मैकुला डेंसा, सॉरी ये भी है आपका, सॉरी मैकुला डेंसा भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक, ये सारा, ये पूरा, ये जो पूरा है आपका पोल्केसिन, लेसिस और मैकुला डेंसा, इन तीनों को कंबाइन करके कॉमन टर्म दी जाती है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेरी गुड, JGA, दैट इज juxtaglomerular apparatus। मैंने बताया था हार्ट इस पे कैसे काम करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट करता है जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो? इनहिबिट करता है। स्पेशली कौन से सेल्स को इनहिबिट करता है? ताकि क्या रिलीज ना हो? रेनिन। वेरी गुड, रेनिन। क्योंकि रेनिन क्या काम करता है? रेनिन बीपी को बढ़ाता है, RENIN। जो डाइजेशन में है वो RENN है, पर यहाँ जो है वो RENIN है, वो एक एंजाइम है, वो एक हार्मोन है। तो ये आपका पोल्केसिन सेल रिलीज करता है, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब मैंने आपको एक चीज क्यों बताई, अब ध्यान से देखो, जब तुम्हारा बीपी कम है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी क्या रिलीज करे? रेनिन रिलीज करे। तो अब देखो कैसे होगा। जब तुम्हारी बीपी, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये कंसेप्चुअल है। जब तुम्हारा GFR कम हुआ, इसका मतलब तुम्हारा यहाँ जो फिल्ट्रेट गया वो भी कम था। अगर फिल्ट्रेट कम था तो उसका मतलब फिल्ट्रेट के अंदर जो सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती नॉर्मली एज कंपेयर टू जब फिल्ट्रेट प्रॉपर अमाउंट में होता, तो X अगर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन तब थी, तो अब X की कॉन्सेंट्रेशन X माइनस होगी, कम होगी पहले से, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अगर नॉर्मली मेरी सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन X थी, जब फिल्ट्रेट GFR जितना होना चाहिए था उतना ही होता। नॉर्मल GFR की जो वैल्यू होती है वो 125 ml पर मिनट होती है, ठीक है। तो 125 ml पर मिनट नॉर्मल होता है GFR। पर अब मैंने कहा अब मेरी केवल 100 ml है,
यस 80 ml पर मिनट है, तो ऑब्वियसली इसमें जितना सोडियम कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी कम होगा बेटा ऑब्वियस। तो जब सोडियम की कमी आपकी बीसीटी तक पहुंचेगी, तो ये जो मैकुला डेंसा सेल्स है ना, दीज आर सोडियम लविंग सेल्स, इनको सोडियम से बहुत प्यार है, दे लव सोडियम लाइक एनीथिंग। तो जो मैकुला डेंसा सेल्स हैं, इनको सोडियम से इतना प्यार है कि अगर इनकी कमी हो जाए तो ये पागल हो जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है, अब उसको पता है कि मुझे दिन में 10 चॉकलेट खानी है, अगर तुम उसको 2 चॉकलेट दोगे तो पागल हो जाएगा ना, राइट? यस और नो? आज मैं गया और मुझे पता है मैं उसको रोज 10 चॉकलेट देता हूँ, पर आज मैंने उसको कितनी चॉकलेट दी? केवल 2, क्या होगा? वो पागल हो जाएगा, वो हाइपर हो जाएगा। सेम यहाँ होता है, जितना मेरा कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल एक्स कॉन्सेंट्रेशन जानी चाहिए थी, बट अब मेरी एक्स माइनस कॉन्सेंट्रेशन है, तो जब मेरी एक्स माइनस कॉन्सेंट्रेशन सोडियम की पहुंची तो मैकुला डेंसा एक्टिवेट हो गया। उसने कहा अरे ये तो सोडियम कम है, अब मैं क्या करूं? तो मैकुला डेंसा सेल्स क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको देखा अरे यार ये क्या हो रहा है, सोडियम तो कम है। तो जैसे उसको पता चला सोडियम कम है, मैकुला डेंसा क्या हो गया? एक्टिवेट। जैसे ही मैकुला डेंसा एक्टिवेट हुआ, मैकुला डेंसा ने किसको एक्टिवेट करा? लेसिस को। लेसिस ने किसको एक्टिवेट करा? पोल्केसिन को। पोल्केसिन सेल जैसे ही एक्टिवेट होंगे, पोल्केसिन सेल रिलीज करेंगे रेनिन, और ये रेनिन आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? लेट अस सी दैट। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बना लिया साथ में साथ? बना Yes, लिया? sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखना, अब लिवर का काम आएगा, किडनी का काम भी मैं साथ साथ बताता चल रहा हूं इसी वजह से, ठीक है? अब देखो, अब तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा। अभी हुआ क्या था, मेरा ब्लड वॉल्यूम कम था, जिसकी वजह से मेरा रीनल ब्लड फ्लो भी कम था। ओके, इसको हम इधर बढ़ाते हैं। इसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो भी कम था, उसकी वजह से रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम था, इसकी वजह से जीएफआर भी कम था, और इसकी वजह से सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कम थी फिल्ट्रेट के अंदर। जब सोडियम आयन कम हुए तो क्या होगा? तभी तो पंगा हुआ सोडियम आयन की कमी की वजह से। जब सोडियम आयन कम हुए तब आपका मैकुला डेंसा एक्टिवेट हो गया। तो सोडियम आयन की लो कॉन्सेंट्रेशन ने एक्टिवेट कराया मैकुला डेंसा को। जैसे मैकुला डेंसा एक्टिवेट हुआ, इसने एक्टिवेट कराया किसे? लेसिस सेल, और लेसिस सेल्स ने इन टर्न किसको एक्टिवेट कराया? पोल्केसिन सेल्स को। और पोल्केसिन सेल्स जैसे एक्टिवेट हुए, उन्होंने रिलीज कर दिया क्या? रेनिन। So renin is acting as an enzyme as well as a hormone. तो यहाँ ये डुअल रोल प्ले कर रहा है, इट इज प्लेइंग अ डुअल रोल। यहाँ जो आपका रेनिन है, इट इज एक्टिंग एज अ डुअल रोल, इट इज प्लेइंग अ डुअल रोल हियर। अब ये रेनिन ब्लड में जाएगा, दिस रेनिन एंटर्स ब्लड स्ट्रीम। तुम्हें पता है हमारा एडल्ट में ब्लड कहां बन रहा है? लिवर में। तो लिवर क्या करता है? अब आगे लिवर का रोल। अब ये जो लिवर है, लिवर की जो सेल्स हैं उनको क्या बोलता है? लिवर के सेल्स को क्या बोलता है? व्हाट आर द सेल्स ऑफ लिवर नोन एज? हिपैटोसाइट्स। दे आर नोन एज हिपैटोसाइट्स। अब ये हिपैटोसाइट्स एक कंपाउंड रिलीज करेंगे ब्लड के अंदर, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, which acts as a substrate. किसकी तरह काम करता है? सबस्ट्रेट। और अब याद करो बायोमोलिक्यूल्स, लास्ट टॉपिक एंजाइम। ये रहा एंजाइम। जब हमारा ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया, अब ब्लड स्ट्रीम में क्या है? मेरे पास एंजाइम भी प्रेजेंट है जिसका नाम है रेनिन,
मेरे पास सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। अब क्या होगा, एंजाइम और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, एक एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, बिल्कुल सही। रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जिसका एक रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन में होगा, एक रिवर्स रिएक्शन में होगा। तो आई हैव अ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट। और फिर क्या होगा, इररिवर्सिबल रिएक्शन होगी, एंजाइम तो एज इट इज निकल जाएगा, एंजाइम तो एज इट इज निकल जाएगा, एंजाइम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अब सब तुम्हारा सबस्ट्रेट की जगह प्रोडक्ट बन जाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ, ये ध्यान देना है, प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1, एंड दिस एंजियोटेंसिन 1 इट इज अ वैसोडाइलेटर। क्या हमें वैसोडाइलेटर चाहिए? हमारा ऑलरेडी बीपी क्या था इनिशियली, स्टार्टिंग में मेरा बीपी क्या था, कम था ज्यादा था? कम। कम था। अब वैसोडाइलेटर भी बीपी कम करता है, क्या मुझे वैसोडाइलेटर चाहिए? नो सर। No, sir. हाँ, तो मुझे क्या चाहिए, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर या वैसोडाइलेटर? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा यहाँ, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस एंजियोटेंसिन 1 ये ब्लड में ही है, सब कुछ ब्लड में ही हो रहा है। अब ये जाएगा आपके लंग्स में थ्रू पल्मोनरी बर्थ, ये जाएगा पल्मोनरी ब्लड सप्लाई में, लंग्स पे। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ब्लड सप्लाई पे जाएगा। अब जहां आपकी जो लंग्स के पास जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, उनकी वॉल्स में एक एंजाइम होता है ACE। तो मान लो जैसे ये तुम्हारे एक मैंने लंग बना दिया, यहां से एक ब्लड वेसल जा रही है, एक ये ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है। सो दिस इज पल्मोनरी ब्लड वेसल, ठीक है, पल्मोनरी ब्लड वेसल है। दिस इज योर लंग्स, लंग्स को हम बोलते हैं पल्मोन्स। अब ये वॉल है, दिस इज द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दिस इज द वॉल ऑफ पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी। इसकी वॉल में एक स्पेशल एंजाइम होता है, ये सेल्स हैं इसके, these are cell endothelial cells of pulmonary blood vessels। उसके ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये रहा एंजाइम, इसका नाम है ACE। ACE की फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, जब ये एंजियोटेंसिन 1 बना था, ये ब्लड में प्रेजेंट था, ठीक है, इसको मैं A1 लिख लेता हूं सिंपली, A1 ये ब्लड में फ्लो कर रहा था, A1 एंजियोटेंसिन 1। अब ये जैसी लंग्स में इस एंजाइम के थ्रू पास होगा, ये एंजाइम इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। सो दिस इज योर एंजियोटेंसिन 2। दिस इज योर एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, एंड दिस वाज योर एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 नेचर में कैसा था, वैसोडाइलेटर है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर? वैसोडाइलेटर। और एंजियोटेंसिन 2 इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, इन नेचर इट इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और ये था वैसोडाइलेटर। एंजियोटेंसिन 2 बनने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा या ज्यादा? ज्यादा। तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। इतना समझ में आया है? यस सर। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो।
बताइए। बताइए, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो। ये लिवर और किडनी का फंक्शन मैं साथ साथ बता रहा हूँ, पर इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो लिवर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। लिवर का हमने एंटीरियर व्यू देखा और पोस्टीरियर व्यू देखा। उसके बाद हमने क्या देखा लिवर में, कि जो लिवर इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर हमने उसके बाद क्या देखा कि जो लिवर है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस दो काम करता है, बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है, बट वो साथ ही साथ पेंक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट कराता है ताकि फैट का डाइजेशन हो सके। दूसरा, वो विटामिन के एब्जॉर्प्शन को इनिशिएट कराता है, रेगुलेट कराता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि विटामिन के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद वो सोमैटोमेडिन रिलीज करता है, विच इज लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो आपका मेडिएट करता है ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को, एक्शन को। और उसके बाद वो हमारी बॉडी में जो भी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है, ये वो फैक्टर है, वो प्रोटीन है जो ब्लड बनाने में हेल्प करता है, उसका 15% रिलीज करता है। तो टोटल एरिथ्रोपोइटिन अगर 100% रिलीज हो रहा है तो उसका 15% लिवर रिलीज करेगी और रिमेनिंग 85% आपका किडनी रिलीज करेगी। और लास्ट फंक्शन है कि एक आपका एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करता है, which acts as a substrate। तो जो लिवर है इट रिलीजेस अ सबस्ट्रेट which is known as एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन आपका सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, और जो रेनिन आपके पोल्किसिन सेल रिलीज कर रहे थे, ये दोनों आपस में बाइंड करके क्या बनाते हैं, एंजियोटेंसिन 1 which is inactive, which is vasodilator। हमें वैसोडाइलेशन तो चाहिए नहीं क्योंकि हमारा बीपी ऑलरेडी कम है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के थ्रू आपका पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में जाएगा, और पल्मोनरी ब्लड वेसल जो लिवर को ब्लड सप्लाई करती है, जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है आपका, जहाँ आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, वहां क्या होगा, वहां जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, वहां की जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनके सरफेस पे आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिन 1 को जो वैसोडाइलेटर था उसको कन्वर्ट करा देगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, व्हिच एक्ट्स एज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर, और ये वैसोकंस्ट्रिक्टर आपका बीपी को बढ़ाता है। इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. लिवर का फंक्शनिंग समझ में है? लिवर की फंक्शनिंग में कोई भी डाउट है तो बताओ। No, sir. किसी भी एक भी बच्चे को लिवर की फंक्शनिंग में डाउट है तो बताइए। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखते हैं किडनीज। जो ह्यूमंस की किडनी होती है दैट इज मेटानेफ्रिक इन नेचर। वी हैव गॉट अ पेयर ऑफ किडनीज। क्या हमारी जो दोनों किडनीज होती है क्या एक ही लेवल पे रहती हैं? आर दे एट द प्रेजेंट एट द सेम लेवल और एट डिफरेंट No, लेवल? sir. No, Sir, sir. at different level. ओके, कौन सी किडनी नीचे होती है, कौन सी ऊपर होती है? सर लेफ्ट ऊपर एंड राइट नीचे। हाँ ठीक है, तो दिस इज द राइट किडनी। लेफ्ट किडनी हल्की सी ऊपर होती है, ऐसा क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, जो आपकी लेफ्ट और राइट किडनीज हैं, जो आपकी लेफ्ट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, दिस इज योर राइट किडनी। ये हल्की सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से, क्यों? क्योंकि ऊपर लिवर प्रेजेंट होता है, तो लिवर हल्का सा इसको कंप्रेस कर देता है, इस वजह से लेफ्ट जो राइट किडनी है थोड़ी नीचे हो जाती है एज कंपेयर टू लेफ्ट। अब इसके यहाँ एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, देयर इज एन ओपनिंग प्रेजेंट हियर, ठीक है? बहुत बड़ी बना दी है, छोटी सी ओपनिंग होती है। ये जो ओपनिंग है हमारी, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं?
इसको बोलते हैं हाइलस। कुछ कुछ बुक्स में आपको हाइलम मिलेगा और कुछ कुछ बुक में आपको मिलेगा हाइलस रेनालिस। यहां से हमारे यूरेटर्स निकलते हैं। दीज आर द ट्यूब्स व्हिच कैरी यूरिन। which enters into urinary bladder and urinary bladder आगे बनाता है हमारा यूरेथ्रा और फिर क्या बनता है आपका यूरिनरी ओरिफिस। so this is left ureter, right ureter, ये आपके एंटर करते हैं यूरेटर्स into a triangular shaped structure of urinary bladder। ये urinary bladder है आपका जो यूरिन को टेम्परेरी स्टोर रखता है। इसके अंदर एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइगॉन, जिसके अंदर यूरिन टेम्परेरी स्टोर रहता है। दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज यूरिनरी ओरिफिस और यूरेथ्रल ओरिफिस। यूरेथ्रल ओरिफिस। अब यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है वहां स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है जिसको मैं शेड कर रहा हूं। इन मसल्स को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? इन मसल्स को क्या बोलते हैं एनीवन? इट इज नोन एज डेट्रेसर मसल। दीज आर नोन एज डेट्रेसर मसल्स। ठीक है, ये डेट्रेसर मसल्स स्मूथ मसल्स होते हैं। दीज आर स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स आपके बिल्कुल नेक एरिया पे जहां यूरेथ्रा बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पे मॉडिफाई करके एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर। सो इंटरनल स्फिंक्टर is the modified form of detrusor muscle and it is involuntary in nature. It is involuntary in nature. उसके बाद यूरेथ्रा में एक और स्पेशल टाइप की मसल प्रेजेंट होती है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर। दिस एक्सटर्नल स्फिंक्टर is not a smooth muscle. It is a skeletal muscle. It is a skeletal muscle and it is voluntary in nature. ये आपके कंट्रोल में होता है। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में होता है बट इंटरनल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में नहीं होता। बट साथ ही साथ हमारे पास यहाँ ब्लड सप्लाई करने के लिए कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं। So this is the aorta or branch of aorta which enters into the kidney is known as renal artery, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी बट नॉन फिल्टर्ड और साइमल्टेनियसली एक और यहाँ वेन आती है जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इंफीरियर वेना केवा और किडनी से जो निकलती है उसको हम बोलते हैं रीनल वेन। तो किडनी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी रीनल वेन और रीनल वेन कंबाइन करके बनाती है आपकी इंफीरियर वेना केवा जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जाती है इनटू द राइट एट्रियम। एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है बट
कौन सा, फिल्टर्ड या नॉन फिल्टर्ड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड जो किडनी में आ रहा है ब्लड, ये Non-filtered. अनफिल्टर्ड। तो Unfiltered. ये मैं शेड कर रहा हूँ, दिस इज एओर्टा, दिस इज एओर्टा। और जो दूसरी बनाई है वो आपकी कौन सी है, इंफीरियर वेना केवा। एओर्टा की वो ब्रांच जो किडनी में जाती है ब्लड सप्लाई करने के लिए, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। किडनी का स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? ये बेसिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी का सिस्टम का स्ट्रक्चर है। मैंने किडनी नहीं बनाई है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। ये आपको क्लियर है तो बताओ। Yes, sir. किसी को इस स्ट्रक्चर में डाउट है? ये तो हमने 10th में भी पढ़ा है। Yes, sir. ठीक है, ओके। अब इसके बारे में बात करें हम आगे। ये आप लोगों ने बना लिया है? Yes, sir. सर 1 मिनट रुक जाइए। ओके। अभी मैं आपको सारे बस एक बेसिक स्ट्रक्चर्स बताता चल रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ में आता रहे। ठीक है, यस सर डन। सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सब आज बताएगा फंक्शनिंग ऑफ किडनी। पहला फंक्शन कौन बताएगा किडनी का? बताइए, किडनी का फंक्शन कौन बताएगा सबसे पहला? अरे अभी तो हमने डिस्कस किया जब लिवर पढ़ा रहा था तब। क्या करता है? Filter blood. Filter blood. ओके, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, थर्ड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है ब्लड की, तो ऑस्मो रेगुलेशन। फोर्थ 85% एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है द बॉडी। एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या बताया था मैंने? व्हाट डिड आई टेल यू? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। हाँ, तो लिख लो, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड एक छोटा, ये मान लो प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड। बहुत बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके एक बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। पेप्टाइड एक बहुत छोटी सी चेन होती है। ठीक है, व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड? किसको पता है व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड? हम बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस कर चुके हैं गाइस, कम ऑन। पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जॉइन होते हैं। यस, तो किसके बीच में होता है? कौन सा बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मतलब अमाइनो एसिड्स के बीच में बनते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड के कौन से ग्रुप के बीच में? ओके, पहले अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं, उसको देखो। NH2 COH H, ठीक है, और R1, कोई भी एल्काइल ग्रुप है। एक और अमीनो एसिड ले लो, NH2 COH H R2, कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप है। तो किस किस के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा? किस किस के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा बेटा? उमामा,
उमामा कहाँ चली गई क्लास में, उसका शायद नेट सर का सी सर CO वेरी गुड। हाँ, तो अब कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखिए, बिटवीन OH ऑफ COOH एंड H ऑफ NH2, इसके बीच में बनेगा। इसके बीच में बनने के जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, NH2CHR1CO, यहाँ बचा NHCCOHHR2। सो ये जो बॉन्ड बना, the bond which is formed between carboxylic group of one amino acid and amino group of another amino acid, ये जो bond बना, this bond is known as a peptide। बात समझ में आई है? यस Yes, sir. ठीक है, तो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, लिख लीजिए इसके बारे में। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन which is released in response to low oxygen level in the body। ये कब रिलीज होता है, जब किडनी के टिश्यूज में लो ऑक्सीजन लेवल इन द टिश्यूज ऑफ किडनी, किडनी के टिश्यूज में जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तब ये हार्मोन रिलीज होता है। So erythropoietin is released when there is low oxygen level in the tissues of the kidney। मान लो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा, तब ये रिलीज होगा। और ये कौन रिलीज करेगा, इट इज रिलीज्ड बाय JGA सेल्स, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस सेल्स ही इसको रिलीज करेंगे। और इस एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होगा, तो JGA सेल्स तो इसको रिलीज करेंगे और एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होगा, इट विल स्टिमुलेट erythropoiesis, formation of blood, erythropoiesis, that is formation of blood in red bone marrow, especially RBCs का formation करवाएगा red bone marrow में। जितने ज्यादा RBCs बनेंगे, more RBCs form, RBC का नंबर बढ़ेगा, जैसे RBC का नंबर बढ़ेगा हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बताइए? यस सर Yes, sir. तो ये हार्मोन क्या करता है, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, किडनी के टिश्यूज में जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तब एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट होता है, रिलीज होता है। कौन रिलीज करेगा उसको, JGA सेल्स। इसका मतलब ये, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये लो ऑक्सीजन लेवल कॉन्सेंट्रेशन है वो JGA सेल को ही स्टिमुलेट कर रही है? कैन आई से दिस? जो लो ऑक्सीजन लेवल कॉन्सेंट्रेशन है वो इन JGA सेल्स को ही एक्टिवेट कर रही है। कैन आई से दिस? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जब JGA सेल्स एक्टिवेट होंगे, इन टर्न एरिथ्रोपोइटिन एक्टिवेट होगा। जैसे एरिथ्रोपोइटिन एक्टिवेट होगा, एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, ये कराएगा एरिथ्रोपोइसिस, किसमें, रेड बोन मैरो में, ताकि ज्यादा आरबीसीज बने, ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी। ये बात समझ में आई है? यस Yes, सर sir. Yes, sir. इतने में कोई डाउट है तो पूछो, बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। Sir, मेटानेफ्रिक का क्या मतलब है? देखो ये डिफरेंट टाइप्स के होती हैं, ये हम लोग किडनी जब मैं कराऊंगा तब बताऊंगा कि जब मैं इसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा किडनी की, कि बचपन में कहाँ होती थी, मतलब अलग अलग फेज में, तब वील अंडरस्टैंड कि मेटा एक डक्ट बनती है, मेटानेफ्रिक डक्ट, उससे ये अराइज करती है। वो कैसे बनेगी, व्हेन आई टेल यू दी एम्ब्रियोलॉजी। तो जब मैं किडनी की एम्ब्रियोलॉजी समझाऊंगा तब बताऊंगा व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय मेटानेफ्रिक। तो अभी के लिए Okay, sir. जस्ट कीप दैट डाउन, इट्स परफेक्टली फाइन। तो जब मैं किडनीज की एम्ब्रियोलॉजी कराऊंगा तो तुम्हें बहुत क्लियर होगा, क्योंकि उसमें प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज तब बताऊंगा, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए यू कैन स्किप दैट डाउन, इट्स परफेक्टली फाइन। Okay, sir. इतने में कोई डाउट है तो बताइए, बताइए। No, sir. ओके
इसका नेक्स्ट फंक्शन देखता है, ये 4 फंक्शन हो गए, 5वां फंक्शन देखता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तब आपके पोल्केसिन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और रिलीज करते हैं रेनिन को, और रेनिन आपका बीपी को बढ़ाता है। अभी हमने ये पढ़ा था किडनी और लिवर का, जब हमने काम साथ में पढ़ा था, ये पढ़ा था। यस सर। अब साथ ही में ये जो रेनिन है आपका, और ये जो आपका ये एंजियोटेंसिन 1 बना था, रेनिन ने जब कंबाइन करा था हमारा एंजियोटेंसिनोजन के साथ, तब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना था, पहले आपका बना था एंजियोटेंसिन 1, और एंजियोटेंसिन 1 आपका ACE एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। यही हमने पढ़ा था। यस सर। This angiotensin 2 was a vasoconstrictor. It was a vasodilator. This was acting as a substrate. This was acting as an enzyme. अब वापस से वो पूरा रिवाइज हो गया। अब ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 ये जो बना, ये एंजियोटेंसिन 2, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये हमारी किडनीज थी। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं? Adrenal gland. एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का एक बाहर का पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है। जो बाहर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो दिस इज कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एंड द इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये आपका इस एड्रिनल ग्लैंड से जाके बाइंड करता है, क्योंकि यहाँ इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। सो देयर इज अ रिसेप्टर हियर, यहाँ एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। सो रिसेप्टर फॉर एंजियोटेंसिन 2, रिसेप्टर फॉर एंजियोटेंसिन 2। तो ये एंजियोटेंसिन 2 बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, बाइंड्स टू द रिसेप्टर, जो किस पे प्रेजेंट है, कौन से ग्लैंड पे प्रेजेंट है, कौन से ग्लैंड पे प्रेजेंट है? Adrenal. जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 से बाइंड करेगा, आपका एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, वो रिलीज करेगा एक हार्मोन को। इट रिलीजेस अनदर हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। अब याद आ रहा है हमें उस दिन एल्डोस्टेरोन का क्या पढ़ाया था? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक वो हार्मोन है जो आपके नेफ्रॉन के डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट, और कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट पे एक्ट करता है। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डीसीटी इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। डीसीटी तक आपका नेफ्रॉन होता है। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे ये एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है। और ये क्या काम कराता है एल्डोस्टेरोन? ये इन दोनों में ही सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। It will help in increasing the reabsorption of sodium in the blood. ब्लड में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो जितना ज्यादा सोडियम वापस आएगा ब्लड में, उतना बीपी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो देखो बढ़ गया बीपी। ड्यू टू दिस बीपी विल इंक्रीज। अब समझना है रेनिन कैसे और बीपी बढ़ा रहा है।
Yes, sir. एक तो एंजियोटेंसिन 2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था तो इससे बीपी बढ़ रहा था, एक तो ये बीपी बढ़ा रहा था। पर दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड के रिसेप्टर से बाइंड करता है, अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है जो एड्रिनल ग्लैंड पे प्रेजेंट है, और फिर एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा, और दोनों में एक्ट करने की वजह से जो भी बाहर फिल्ट्रेट निकल रहा था और कलेक्टिंग डक्ट में जो भी यूरिन बाहर निकल रहा था उसमें से सोडियम को रीएब्सॉर्ब कराएगा ब्लड के अंदर, वापस से सारा सोडियम को रीएब्सॉर्ब कराएगा ब्लड के अंदर। जितना ज्यादा सोडियम वापस से ब्लड में रीएब्सॉर्ब होगा उतना बीपी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। इसलिए जब कभी भी किसी का बीपी बढ़ता है तो डॉक्टर एडवाइस करता है कि उसको नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं, और ये जो सोडियम आयन है ये आपके बीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है। बात समझ में आई है? यस सर। Yes. Yes, sir. इतने में कोई डाउट है तो पूछिए। इतने में कोई डाउट है तो पूछिए। सर डॉक्टर तो कॉफी के लिए भी कहते हैं, कॉफी बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। सर डॉक्टर कॉफी के लिए भी कहते हैं कॉफी भी बीपी बढ़ाती है, तो उसमें क्या होता है? बेटा आपकी कुछ आवाज नहीं आ रही, मुझे आप चैट में लिख के बताइए। आप मुझे चैट में लिख के बताओ कि क्या डाउट है। वो कह रही है कि कॉफी भी बीपी बढ़ाता है। कौन बीपी बढ़ाता है? कॉफी। Coffee. कॉफी? हाँ वो अलग है, वो हम देखेंगे बाद में कैसे जो कैफीन है वो बीपी बढ़ाने में कैसे हेल्प करेगा। we'll discuss that। उसमें हम पहले अभी हमें एडीएच का काम भी देखना है ना। एडीएच वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, उससे भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो वो एडीएच का काम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वो हम पढ़ेंगे जब हम जब दूसरी सेक्शन पढ़ेंगे। प्रेशर इफेक्ट होता है आपका, ठीक है, एक एंटी डायूरेटिक इफेक्ट होता है, सो वील स्टडी दैट, तब उसमें हम लोग समझेंगे। एल्कोहल का भी रोल पढ़ेंगे कि एल्कोहल भी कैसे हेल्प करता है। एल्कोहल एक्चुअली एडीएच के प्रोडक्शन को कम करता है, तो वो कैसे करता है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, यूरिन डाइल्यूटेड होगा, कंसंट्रेटेड होगा, दैट आल्सो वील अंडरस्टैंड। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। यस इसका लास्ट फंक्शनिंग है कि इट रिलीजेस अनदर हार्मोन नोन एज कैल्सिट्रायोल। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसका 6th पॉइंट आप लिख के छोड़ दीजिएगा कि इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ अनदर हार्मोन known as calcitriol, and calcitriol is the active form of vitamin D3. Active form of vitamin D3. Vitamin D3 का नाम क्या होता है? कोलकैल्सिफेरॉल। कोलकैल्सिफेरॉल। So what is the technical zoological name of vitamin D3? कोलकैल्सिफेरॉल। तो किडनी एक और हार्मोन निकालती है कैल्सिट्रायोल, वो जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी3 का। अब ये कैसे कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी अलोंग विद पैराथ हार्मोन, वो हम देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बस ये लास्ट इसका फंक्शन बचा है। तो आपका किडनी खत्म हो जाएगा और आपका लिवर खत्म हो चुका है, किडनी हम कर चुके हैं, हार्ट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम जीआई ट्रैक करेंगे, ठीक है, और जीआई ट्रैक हो जाएगा, और फिर हम अपना बाकी जो भी 2-3 और छोटे-छोटे से हम लोग के बचे हुए, ठीक है, जैसे प्लेजेंटा हो गया, उसको खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इतना आपको सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. जस्ट हैव अ गो थ्रू विद दिस। इन केस कोई डाउट आता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। चलो सर हाँ बोलिए। सर कल की क्लास का एक क्वेश्चन पूछना है सर। बेटा वो मुझसे अब क्लास के बाद पूछना, मेरे 4:45 से फिर से क्लास है। ओके सर। ठीक है, हाँ एक सेकंड। नहीं हो रहा। अच्छा इतना, तब तक तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें तुम्हें और आज इसके कोई भी किसी टॉपिक में क्या डाउट आया तो मुझे आप बता सकते हो। इतने में कोई भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप बता सकते हो।